guys, I welcome you all to the day 143 of our series, and in today's session we are going to learn the conversion of infinitive verbs from their active version to their passive version. So let's get started with our today's session. And here is your task which you are supposed to perform. First of all, let me tell you that all the statements given here are correct, and you were supposed to write the synonyms of these underlined words. So the problem is increasing. You can write the problem is growing. The problem is growing. Next is she had to confront her fear. So she has had to. She has had to face up to her fear. Next is when did the problem occur? So when did the problem arise? Or you can also write come up. When did the problem come up? Next is drugs can aggravate the problem. So drugs can exacerbate the problem. Next is it is an insurmountable problem. It is an insoluble, which cannot be solved, problem. The last one is the problem facing us is huge. The problem confronting us is huge. Let's move to the next exercise, and here you were supposed to complete the dialogues. So have they aggravated the problem? Yes, they have made it dash. Yes, they have made it worse. To aggravate means to make something worse. Next is it is an dash problem. No, we can deal with it later. So it is an urgent. Is it? Here the question is asked. So is it an urgent problem? The answer is no, we can deal with it later. Next is have they discussed finance? The answer is yes. I dash it at the last meeting. So I raised it. I raised the issue of finance. Next is has she dash her shyness? The answer is yes. The difference is amazing. So has she overcome? Has she overcome her shyness? Next is have they solved the problem? The answer is no. They have begun to get it dash with it. They have begun to get to grips with it. Next is it is a dash problem, isn't it? The answer is yes, it never seems to go away. So it is a perennial problem. Next is are they dash the problem? Yes, I think they are making a real effort. So are they tackling? I'm writing it here. Tackling the problem, or you can also write are they confronting the problem? Confronting the problem. Last one is it a major problem? No, it is just a minor matter. Minor. It is not that much important. Now let's move forward, and this is a quick revision that in case of infinitive verb you were supposed to write 2 plus V1, and this first form of the verb should be into its base form. That means no SES or IES or no ING are required in this. So to do, this one is correct. To does, to did, and to doing, all of them are incorrect. Now let's move to the conversion of it. Active version has 2 plus V1, to do, to clean, or to see. This is our active version, and in case of passive version we always require B plus V3, this combo. So in case of passive version of infinitive, we require to be and then V3. So to do gets converted into to be done, to clean changes into to be cleaned, and to see into to be seen. For example, they are going to build a new supermarket next year. This is our active case, to build. And build, it is the first form of the verb. Its second and third forms have B-U-I-L-T, built, this spelling. So a new supermarket is going to be built next year.
So here you can see that to build get transformed into to be built next year. Similarly, here is your exercise. So I would suggest that pause your screen for a moment and practice it. I'm sure आपने कर लिया होगा, तो चलिए start करते हैं. You need to guide her. To guide, this is our infinitive format, so you were supposed to write it into this to be V3 format. So let's get started. You need to guide her. She needs to be guided. She needs to be guided by you. And here we are putting s at the end of this verb in order to make it singular, because our subject here in itself is singular. Next is I do not or I don't want to disturb. I don't want anyone to disturb me. And it can change into I don't want to be disturbed. To be disturbed, and it is optional, by anyone. By anyone. I don't want to be disturbed. Next is there is no need for the governments to regulate the internet. Again, you have to pause your screen. I'm sure you would have done it. So let's get started. There is no need for the governments to regulate the internet. There is no need. There is no need for the internet. For the internet. And here to regulate gets converted into to be regulated. To be regulated by the government. It is optional for you. तो अभी आपने देखा टू रेगुलेट को हमने चेंज किया है टू बी रेगुलेटेड में. और देखिए हर बार ये नहीं होगा आपको, ये हर बार आपको ये देखने को नहीं मिलेगा कि जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा और जो ऑब्जेक्ट है वो आगे आ जाएगा वो सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा. हर बार वो नहीं होता. लेकिन एक चीज जो है कांस्टेंट रहती है, जो पहचान होती है पैसिव की, वो ये है BV3. बस ये आपको देखने को मिलेगा. तो यहाँ पे आप देखिए देयर इससे स्टार्ट हो रहा था एक्टिव वर्जन भी और पैसिव वर्जन भी, लेकिन यहाँ पे टू रेगुलेट का हो गया टू बी रेगुलेटेड. नेक्स्ट में आते हैं. द पुलिस आर अबाउट टू क्वेश्चन द सस्पेक्ट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू दिस दैट द पुलिस इट इज a plural subject in itself. The police, the army, the infantry, all of these subjects, all of these nouns are plural. So the police are about to question the suspects. The suspects are about to be questioned. About to be questioned by the police. This is the correct version. Next is यहाँ पे फिर से आपको स्क्रीन को पॉज करना है और एक अटेम्प्ट दीजिए. आई एम श्योर आपने कर लिया होगा. चलिए आंसर्स पे आते हैं. We waited for him to give us instructions. ये हो जाएगा we waited to be given instructions. आप यहाँ देखिए we waited. दोनों ही केसेस में, एक्टिव में भी पैसिव में भी, दोनों में we waited से ही स्टार्ट किया जा रहा है स्टेटमेंट को, और वो करेक्ट है अपने आप में. तो देखिए we waited for him to give का चेंज हो गया we waited to be given इंस्ट्रक्शंस. अब यहाँ पे अस जो है, अब वो ऑब्वियस है क्योंकि हम वी कर रहे हैं यहाँ पे, तो अब वहाँ पे अस की रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा नहीं रह जाती यहाँ. और अगर आपने ये किया है दैट वी वेटेड फॉर द इंस्ट्रक्शंस टू बी गिवन, तो भी आपका करेक्ट है. नेक्स्ट में आते हैं. आई वॉन्ट टू बाय दिस ड्रेस. ये हो जाएगा आई वॉन्ट दिस ड्रेस टू बी बॉट. टू बी, sorry I missed the B here. So I want this dress to be bought. नेक्स्ट में आते हैं. अगेन स्क्रीन को आप पॉज कीजिए. अब तक तो आपके सारे करेक्ट होने लग गए होंगे.
आई एम श्योर आपने कर लिया होगा, तो चलिए आंसर्स पे आते हैं। Women like men to flatter them, ये हो जाएगा women like to be flattered by men। तो यहाँ पे देखिए to flatter को हमने चेंज किया है to be flattered में। नेक्स्ट है she plans to invite them, तो इसका हो जाएगा they expect to be invited। तो अब यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं चल रहा कि आप जैसा एक्टिव में गिवन है एग्जैक्टली वही वर्ड्स को आपको यूज करना है पैसिव में चेंज करते टाइम। हमें ये देखना है कि कितने अलग अलग तरीकों से हम एक ही सेंटेंस को बोल सकते हैं। तो अब ये देखिए शी प्लान्स टू इनवाइट देम, ये भी करेक्ट है अपने आप में। और अगर आपको इसका पैसिव वर्जन चाहिए तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पे कोई दूसरी वर्ब यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्सपेक्ट, दे एक्सपेक्ट टू बी इनवाइटेड, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट में आते हैं। अगेन आप यहाँ पे पॉज कीजिए स्क्रीन को, लास्ट एक्सरसाइज है ये आपके लिए। आई एम श्योर आपने कर लिया होगा, तो चलिए आंसर्स पे आते हैं इनके। फर्स्ट है यू नीड टू वॉश द कारपेट, तो यहाँ पे हो जाएगा द कारपेट needs to be washed, the carpet needs to be washed। Next is you have to shut this door at night, this door। और अब यहाँ पे आप have को नहीं यूज कर सकते क्योंकि have यहाँ पे you की वजह से हमने यूज किया था, और this door क्योंकि सिंगुलर है तो ये हो जाएगा has। this door has, और to shut का हो जाएगा to be shut, to be shut। और आगे सिमिलर है at night। लास्ट है come on, there is work to do, तो ये हो जाएगा come on, there is work। और simply to do को आप चेंज कर सकते हो to be done, to be done। ये हो गया हमारा इसका पैसिव वर्जन। अब देखिए इनको डेली लाइफ में किस तरह से हम यूज करते हैं। जैसे कि अगर आपको परमिशन लेनी है तो आप ये कह सकते हो दैट अलाउ मी टू हेल्प यू, कि मुझे अलाउ करो कि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। तो इस पे आपका आंसर ये आ सकता है दैट आई डोंट वांट योर हेल्प, वो बहुत कॉमन है। और आई डोंट वांट टू बी हेल्प्ड, यानी कि मैं ये नहीं चाहती कि मेरी हेल्प की जाए, ये भी हो सकता है। तो देखिए आई डोंट वांट टू बी हेल्प्ड, तो ये टू बी हेल्प्ड हमारा पैसिव वर्जन है। नेक्स्ट है, अब जैसे यहाँ पे दो लोग हैं, दो पर्सन हैं, आपस में डिस्कशन हो रहा है उनका। फर्स्ट पर्सन कह रहा है दैट आई डिड नॉट वांट टू ड्राइव होम सो आई गॉट अ टैक्सी, की मैं उस रात को घर पे खुद से ड्राइव नहीं करके जाना चाह रहा था, तो इस वजह से मैंने टैक्सी मंगवा ली, टैक्सी बुलवा ली। इस पे सेकेंड पर्सन बोलता है आई ऑलवेज प्रेफर टू बी ड्रिवन इन अ टैक्सी, कि मैं तो हमेशा ही ये प्रेफर करता हूँ कि मुझे टैक्सी में ही ले जाया जाए। तो अब यहाँ देखिए टू ड्राइव और एक पर्सन यूज कर रहा है टू बी ड्रिवन, तो टू बी ड्रिवन क्या हो गया इसका पैसिव वर्जन। अब यहाँ देखिए कुछ और एग्जांपल्स हैं जो कि हम डेली लाइफ में काफी बार सुनते हैं। तो देखिए शी वॉन्ट्स टू बी पेड फॉर हर टी, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये टी इनको बेच रही है, टी सेलिंग हो रही है यहाँ पे, और इन रिटर्न ये कैश ले रही है यहाँ पे। तो शी वॉन्ट्स टू बी पेड फॉर हर टी। नेक्स्ट है शी लाइक्स टू बी सीन वेयरिंग पर्पल हेयर, टू बी सीन यानी कि वो चाहती है कि वो पर्पल बालों में दिखे, उसको पर्पल बालों में ही देखा जाए लोगों के द्वारा। देखिए शी लाइक्स टू बी सीन पैसिव वर्जन है। लास्ट है ये पर्सन यहाँ पे गिटार को करेक्ट कर रहा है, ठीक कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे दिस गिटार नीड्स टू बी ट्यून्ड, इट साउंड्स टेरिबल। अब यहाँ देखिए टू बी ट्यून्ड, ये हो गया हमारा पैसिव वर्जन। इस गिटार को ट्यून मीन्स इस गिटार को ठीक होने की जरूरत है, नीड्स टू बी ट्यून्ड। इसी तरह से अब यहाँ देखिए रग्बी टीम है ये, सो Ben was hoping to be chosen for the rugby team but he didn't do very well in the trials। तो वो होप कर रहा था, वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसको चुना जाए, किसके द्वारा चुना जाए ये नहीं मैटर करता, यहाँ पे ये मेंशन भी नहीं किया गया, लेकिन वो ये होप कर रहा था कि उसको चुना जाए। सो ही वॉज होपिंग टू बी चोजन
पैसिव वर्जन नेक्स्ट है, आई डिडंट गिव आउट माई ईमेल आईडी एज आई डिडंट वांट टू बी कॉन्टैक्टेड बाय स्ट्रेंजर्स, यानी कि मैंने अपनी ईमेल आईडी इस वजह से नहीं दी थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि जो स्ट्रेंजर्स हैं मैं उनके द्वारा कांटेक्ट की जाऊं, यानी कि वो मुझसे कांटेक्ट करें। तो देखिए टू बी कॉन्टैक्टेड अगेन पैसिव वर्जन है ये। अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल पे आते हैं, he is trying to finish the work soon, he expects most of it to be finished before the weekend, वो ये एक्सपेक्ट करता है कि इस वीकेंड से पहले काफी सारा काम जो है वो खत्म हो जाए। to be finished, to finish से हो गया to be finished। तो ये था हमारा पैसिव वर्जन इन्फिनिटिव के केस में। अभी आते हैं हमारी वोकैबुलरी पार्ट पे। अब आज का हमारा डिस्कशन होगा टीनेज प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशंस। सबसे पहली फ्रेज है डेंट somebody's confidence और reputation। तो देखिए डेंट का मीनिंग वैसे तो आपको पता है, डेंट मार देना, जो उसकी रेगुलर जो शेप है उसको बिगाड़ देना, उसको डैमेज कर देना। तो यहाँ पे डेंट हम इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, डेंट समवन्स कॉन्फिडेंस, यानी कि किसी पर्सन का जो कॉन्फिडेंस है उसको खराब कर दिया है, वो आपने हिला दिया है पूरा। किसी पर्सन की रेपुटेशन में आपने अगर डेंट डाल दिया दैट मीन्स आपने वो डैमेज कर दी है उस पर्सन की। नेक्स्ट है सेल्फ एस्टीम। सेल्फ यानी कि खुद के बारे में, और स्टीम यानी कि रिस्पेक्ट, आप खुद की कितनी रिस्पेक्ट करते हो, खुद के बारे में आप कैसा फील करते हो, वो आता है इसमें सेल्फ एस्टीम में। द वे यू फील अबाउट योर सेल्फ, अगर आप अपने बारे में थोड़ा सा नेगेटिव सोचते हो इन दैट केस यू हैव लो सेल्फ एस्टीम, अदरवाइज यू हैव हाई सेल्फ एस्टीम। नेक्स्ट है मेक लाइट ऑफ समथिंग। अब हम हिंदी में बोलते हैं ना किसी चीज को हल्के में लेना, तो ये लाइट जो है वही है हल्के में लेने वाली चीज, यानी कि टू ट्रीट समथिंग एज अनइम्पोर्टेंट, यानी कि कोई चीज को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देना, उसको हल्के में ही लेना। और इसका ऑपोजिट हो जाएगा टू टेक समथिंग सीरियसली, किसी चीज को सीरियसली लेना। नेक्स्ट है ट्रिवियल। ट्रिवियल यानी कि एक्सट्रीमली पेटी, ध्यान देना प्रिटी नहीं है ये, पेटी, तुच्छ, बहुत ही छोटे लेवल का। नॉट इम्पोर्टेंट और सीरियस, कोई ना ही इतना इम्पोर्टेंट है ना ही इतना सीरियस है वो इशू। नेक्स्ट है टेक समथिंग इन योर स्ट्राइड, यानी कि अगर कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन है पहले तो उसको एक्सेप्ट करो, फिर उससे डील करो अच्छे से, बजाय कि वो जो प्रॉब्लम है वो आपको परेशान करने लग जाए, आप उसको पहले से सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, उससे डील करना स्टार्ट कर दो। तो इसके लिए हम ये फ्रेज यूज करते हैं टेक समथिंग इन योर स्ट्राइड, यानी कि एक्सेप्ट एंड डील विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन विदाउट लेटिंग इट वरी यू, यानी कि उस प्रॉब्लम को आपको वरी मत करने दो। नेक्स्ट है गेट समबडी डाउन, किसी को डिप्रेस्ड फील करवाना। और गेट समबडी डाउन यानी कि अगर आपके ही केस में ये लगा लीजिए, इफ यू आर गेटिंग योरसेल्फ डाउन, इन दैट केस यू आर मेकिंग योरसेल्फ डिप्रेस्ड। नेक्स्ट है कीप समथिंग इन पर्सपेक्टिव, यानी कि कोई प्रॉब्लम जो है उसको इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना, नॉट अलाउ अ प्रॉब्लम टू हैव टू मच इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट है सेटबैक, कोई काम आपका बहुत अच्छे से चल रहा है, प्रोग्रेस में है, और अचानक से वो काम आपका रुक जाता है, वहीं ब्रेक लग जाता है, तो वो हो जाएगा आपका सेटबैक, अ प्रॉब्लम दैट डिलेज और प्रिवेंट्स प्रोग्रेस। नेक्स्ट है रीअश्योर समबडी। एश्योर का मीनिंग होता है किसी को दिलासा दिलाना, किसी को एश्योरेंस देना कि हाँ सब सही हो जाएगा। तो रीअश्योर समबडी का भी वही उसी सेंस में हम मीनिंग लेंगे, से और डू समथिंग दैट मेक्स समबडी लेस वरिड, कि कुछ ऐसा कहना या आपका कोई ऐसा एक्शन जिसकी वजह से जो पर्सन परेशान है वो उसकी परेशानी जो है वो थोड़ी सी कम हो जाए मेंटल लेवल पे। और इसके सिनोनिम में आप ये भी यूज कर सकते हो सेट समबडीज माइंड एट रेस्ट। नेक्स्ट है बी बिहाइंड समबडी और बी बिहाइंड समथिंग, दोनों के ही केस में हो सकता है ये, मीन्स टू गिव योर सपोर्ट टू समबडी और समथिंग, कि आपका पूरा सपोर्ट है उस पर्सन के साथ में या फिर कोई डील है, कोई सिचुएशन है उसके साथ में। नेक्स्ट है रिगार्डलेस ऑफ समथिंग। रिगार्डलेस यानी कि के बावजूद, ये हम यूज करते हैं रिगार्डलेस के मीनिंग में। रिगार्डलेस ऑफ समथिंग यानी कि विदाउट बीइंग अफेक्टेड और इन्फ्लुएंस्ड बाय समथिंग, कोई चीज है उससे इन्फ्लुएंस हुए बिना, उससे अफेक्ट हुए बिना, तो वहां पे इसको यूज किया जाता है रिगार्डलेस ऑफ समथिंग। नेक्स्ट है आर्टिकुलेट समथिंग। अब आर्टिकुलेट हम तब यूज करते हैं, उस पर्सन के लिए हम आर्टिकुलेट यूज करते हैं, क्योंकि ये वर्ब और ये एडजेक्टिव दोनों की तरह से यूज हो सकता है, ये क्वालिटी भी है
पर्सन की। तो जो पर्सन अपने थॉट्स को क्लियरली एक्सप्रेस कर पाए, जो पर्सन अपने थॉट्स को सामने वाले पर्सन को क्लियरली समझा पाए, वहां पे हम इसको यूज करते हैं आर्टिकुलेट। नेक्स्ट है चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि अब देखिए चैनल यानी कि मीन्स कि कोई ऐसा सिस्टम जहां पे कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से हो रहा हो, अ सिस्टम और मेथड ऑफ सेंडिंग और ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन, जहां पे जो इंफॉर्मेशन है वो इजीली तो सेंड की जा रही हो, इजीली ऑब्टेन की जा रही हो, उसको हम बोलते हैं चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। यानी कि कम्युनिकेशन जो है, जो बातें हैं वो आपस में इंटरेक्शन जो होता रहे। अब आते हैं हमारे पैसेज पे, हाउ पेरेंट्स कैन डील विद टीनेज प्रॉब्लम्स। तो अब देखिए teenagers are never satisfied with their appearance and this can dent their self esteem। जो teenagers होते हैं वो कभी भी satisfied नहीं होते अपनी appearance को लेके, और ये कर सकती है क्या, dent in their self esteem। जो उनकी self esteem है ये उनको हिला सकती है, उनको मीन्स डिस्ट्रॉय, डैमेज कर सकती है। नेक्स्ट है डोंट मेक लाइट ऑफ दीज वरीज, यानी कि ये जो वरीज हैं, ये जो कंसर्न्स हैं, ये जो चिंताएं हैं, इनको हल्के में नहीं लेना। डोंट मेक लाइट ऑफ दीज वरीज, इनको हल्के में हमें नहीं लेना है। इवन इफ दे सीम ट्रिवियल टू यू, हालांकि आपको अभी बहुत छोटी दिखती हो कि सेल्फ एस्टीम पे ऐसे कैसे डेंट लग जाएगा किसी पे अपनी अपीयरेंस को लेके, हो सकता है ये चीज आपको ट्रिवियल लगे, छोटी लगे। Explain that others don't notice the detail that we notice in ourselves। तो जो teenagers हैं उनको आप इस तरह से समझाओ कि others don't notice the details, कि जो details खुद में हम नोटिस करते हैं दूसरे वो डिटेल्स उतने डिटेल में नहीं नोटिस करते हमें, ताकि उनकी जो टीनेजर्स की जो सेल्फ एस्टीम है उस पर डेंट ना पड़े। नेक्स्ट पॉइंट इज some teenagers take failure in their stride। कुछ टीनेजर्स तो ऐसे होते हैं कि जो फेलियर को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, while others let it get them down। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो इनकी वजह से सैड या डिप्रेस्ड हो जाते हैं। हेल्प योर टीन टू कीप थिंग्स इन पर्सपेक्टिव। अपने जो टीनेजर हैं उनकी आप हेल्प करिए टू कीप थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, ताकि जो प्रॉब्लम है वो उनको इतनी इंपॉर्टेंस ना दे, वो उनको वर्थलेस समझें। नेक्स्ट है एक्सप्लेन दैट एवरीवन हैज सेटबैक्स इन लाइफ। उनको ये एक्सप्लेन करो, उनको ये समझाओ कि हर पर्सन की लाइफ में कोई ना कोई सेटबैक होता है। एंड रीअश्योर देम दैट यू आर बिहाइंड देम 100%। और उनको इस बात का दिलासा दो, इस बात की श्योरिटी, एश्योरेंस उनको इस बात का दो कि आप उनके साथ में हो, आपका जो सपोर्ट है वो हमेशा उनके साथ में है, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट हैपेंस, चाहे कुछ भी हो जाए। नेक्स्ट है सम टीनेजर्स, बॉयज स्पेशली, यानी कि बॉयज में कुछ टीनेजर्स में find it difficult to identify and articulate how they feel। वो इस चीज में डिफिकल्टी महसूस करते हैं कि वो कैसा फील करते हैं, वो बता नहीं पाते, मीन्स वो इतने आर्टिकुलेट नहीं होते अपनी फीलिंग्स को लेके। नेक्स्ट है कीप चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन ओपन एट ऑल टाइम्स एंड रिस्पेक्ट देयर आइडियाज। यानी कि जो चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन है ये हमेशा ही ओपन रखिए, और वो जो भी आपसे डिस्कस करते हैं वो आइडियाज उनके रिस्पेक्ट कीजिए। ये नहीं है कि वो आपसे कुछ बात कर रहे हैं, चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि आपसे बातें कर रहे हैं वो, और उनको फिर आप तुरंत उसी टाइम पे क्रिटिसाइज कर दो तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा टीनेजर्स पे। सो कीप द चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन ओपन फॉर देम। अभी आते हैं हमारे टास्क पे। आपको यहाँ पे वर्ड्स फिल करने हैं वोकैबुलरी के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे जो कॉन्वर्सेशन हो रही है दो पर्सन में, ए और बी में, इनमें आपको यहाँ सुटेबल वर्ड्स को फिल करना है ताकि डायलॉग्स जो है कंप्लीट हो सके। प्लस इनके अलावा यू हैव टू प्रैक्टिस द पैसिव कन्वर्जन ऑफ सम मोर इन्फिनिटिव्स। कुछ और एग्जांपल्स आपको ढूंढने हैं इन्फिनिटिव्स के जो डेली लाइफ में यूज होते हैं, तो उनको आपको नोट डाउन करना है। सो गाइज नाउ थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग।